प्लीज जल्दी आ जाया करें थोड़ा। आज तो मैंने लगा दिया, नेक्स्ट टाइम नहीं लगेगी। सर 3:10 पे क्लास ज्वाइन होनी थी। 3 बजे? 3 बजे का टाइम है क्लास का, 3:10 तो नहीं है? सर मुझे लगा था 3:10 पे क्लास स्टार्ट होगी। चलें, इट्स ओके, लग गई अटेंडेंस आपकी। Today's lecture is lecture number 7. The title is the dominance, recessiveness, incomplete dominance, and inheritance of the characters and also the lethal genes. Today we cover these 4 or 5 things. What is dominance, what is recessiveness, what is incomplete dominance, and what is the inheritance of the simple character in humans, and what is the lethal genes. So, what is dominance? Dominance is the important phenomena which is discovered by the Mendel. The Mendel said that F1 hybrid, which is cross between two different phenotypes like tall and dwarf, always produce the tall although it contains the dwarf factor. This is basically the dominance. Mendel said that Mendel said that if there is the two possibilities, if a tree is tall or the dwarf, then in case of F1 hybrid it always tall. Why? Due to the some kind of action of the genes, and this kind of action is known as the dominance, in which an allele masks the effect of other allele is known as dominance. So the factor which dominate the fact of other is known as the dominant, or the dominant factor, or the procedure is the dominance. Whose effect is suppressed is known as the recessive. Let's suppose the two alleles are present. One is the capital T and one is the small t. Capital T control the tallness and small t control the dwarfness. So one allele is dominant to other, one allele mask the और suppress the effect of other. एक allele दूसरी allele के असर को दबा देती है और अपने असर को शो करती है। तो वो जो allele है जो दूसरे के असर को दबा रही है वो डोमिनेंट allele कहलाएगी, और जिसका असर दब रहा है वो रिसेसिव allele कहलाएगी। मेंडल ने क्या किया, जो डोमिनेंस करैक्टर थे उनको हमेशा कैपिटल लेटर से शो किया, जो रिसेसिव ट्रेड से या रिसेसिव करैक्टर्स थे उनको स्मॉल लेटर से शो किया। Here is a simple monohybrid cross example in which two parents are the present. One parent is a green in color which is capital G, and capital G which is the dominant on this yellow. One parent cross with other parent. This is green parent, this is yellow parent. When these make the gametes, so all individual which is obtained from this cross is always capital G small g, which is basically due to the dominance of this green character
The phenotype of this plant is green. Keep remember, one thing is phenotype, other thing is genotype. This is genotype. When we talk about the genotype, like I ask in a question, write the genotype of the following. You will write this one only. And when I talk about the write the phenotype of, then you write this one. This is genotype, this is phenotype. This is the parent 1, parent 2, and this is the gametes 1 and other gamete. So there are some dihybrid cross. As we read the definition of dihybrid cross, when we talk about the two characters at a time, this is known as the dihybrid cross, a cross which include the two different characters. If we two different characters studied at a time, the genotypic phenotypic ratios are changed as compared to the monohybrid cross, because there are the two different characters are studied rather than a single character or the monohybrid character. So when we talk about this dihybrid cross, let's suppose we have two parents. One parent is the round and yellow seed, while other is the wrinkled and green seed. While the round and the yellow seed is dominant over the green and the yellow. Like yellow color क्या है, डोमिनेट है, जबकि जो ग्रीन कलर है वो क्या है, रिसेसिव है। इसी तरह अगर सीड शेप की बात करें तो जो राउंड सीड है वो क्या है, डोमिनेट है, और जो रिंकल्ड सीड है वो रिसेसिव है। सो अब हमने राउंड और येलो सीड को क्रॉस कराया ग्रीन और रिंकल से, तो हमारे पास जो डोमिनेट थे वो F1 में आ गए, यानी राउंड और येलो। सो जब हम इस F1 को आपस में क्रॉस कराते हैं, दिस कैपिटल R स्मॉल r क्रॉस विद कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, उससे क्या होता है, एक यहाँ पे आ गएगा। अब हमने फार्मूला पढ़ा था 2 की पावर n कि नंबर ऑफ गैमीट्स कितने बनते हैं। n क्या होता है, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर। यहाँ पे हेट्रोजाइगस पेयर 1 है और 2 है, तो अगर हम 2 की पावर 2 करें तो हमारे पास गैमीट्स आएंगे 4 गैमीट्स। सो हर पेरेंट 4 गैमीट्स बनाएगा। सो फर्स्ट पेरेंट ये है मेल पेरेंट, और यहाँ पे फीमेल पेरेंट लिखते हैं। ये बेसिकली मेथड है पुनेट स्क्वायर मेथड ऑफ गैमीट्स फॉर्मेशन। दिस इज द पुनेट स्क्वायर मेथड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, पुनेट पुनेट स्क्वायर मेथड। समटाइम हम क्वेश्चन पूछते हैं कि गैमीट्स बनाए पुनेट स्क्वायर मेथड से, तो आपको इस मेथड से गैमीट्स बनाने होंगे। अब देखें, ये एक पेरेंट था, इसने गैमीट्स बनाए 4 तरह के, 1 2 3 और 4। कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल r कैपिटल Y एंड स्मॉल r स्मॉल y। इस तरह सिमिलर फीमेल पेरेंट ने भी 4 तरह के गैमीट्स बनाए। अब हमने इन दोनों का क्रॉस किया, ये गैमीट पहले इससे मिला तो इसने ये दिया, फिर ये इधर मिला और ये आया, फिर ये
इधर मिला और ये आया, फिर ये इधर मिला और ये आया। इसी तरह देन ये इधर, फिर ये इधर, फिर ये इधर। अब देखें हमारे पास जीनोटाइप्स बनी, जीनोटाइपिक रेशियो बनी 9331 और फिनोटाइपिक रेशियो भी यही थी 9331। हेंस कि अगर इसमें डोमिनेंस करैक्टर ये है तो 9331 रेशियो आई हमारे पास। मोस्ट इंपोर्टेंट रेशियो है डाइहाइब्रिड के केस में 9331। लेकिन जब हम अगर मोनोहाइब्रिड की बात करें मोनो में रेशियो होती है 31। अब 31 जो है वो चेंज हुई है 9331 में इन केस ऑफ डाइहाइब्रिड, जब हमने दो करैक्टर्स को इकट्ठा स्टडी करना स्टार्ट किया है। सो नेक्स्ट चीज होती है इंडिटरमिनेट, इंटरमीडिएट और द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। समटाइम क्या होता है कि हाइब्रिड्स जो है वो इंटरमीडिएट एक्सप्रेशन को शो करते हैं। अब वो इंटरमीडिएट एक्सप्रेशन कैसे शो करते हैं कि ना तो वो पेरेंट ए जैसे होते हैं ना वो पेरेंट बी जैसे होते हैं। लेट्स सपोज हम बात करते हैं कि दो पेरेंट्स हैं, एक पेरेंट ए है एक पेरेंट बी है, लेकिन जो उनके ऑफस्प्रिंग्स हैं वो दोनों पेरेंट्स के साथ नहीं मैच कर रहे। लाइक अगर पेरेंट ए का सीड येलो है, पेरेंट बी का सीड ग्रीन है, तो हमारे पास जो इंडिविजुअल आया है उसका ना तो सीड येलो है ना सीड ग्रीन है। देन वहां पे हम बात करते हैं कि वहां पे इंटरमीडिएट है या इनकम्प्लीट डोमिनेंस आई हुई है। अब क्या है कि डोमिनेंस एग्जिस्ट सिंगल डोज ऑफ डोमिनेंट जीन एज एनफ फॉर एज द डबल डोज ऑफ डोमिनेंट जीन, कि अगर कोई भी जीन है वो डोमिनेंस इफेक्ट शो कर रहा है। लेट्स सपोज हम बात करते हैं अगर हमारे पास एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है, अगर तो ये टी डोमिनेंट है, फुल डोमिनेंट है, तो फिर चाहे इस टी की सिंगल डोज हो, एक डोज, या इसकी डबल डोज हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये भी प्लांट जो है ये टॉलरेंस शो करेगा और ये भी प्लांट जो है वो टॉलरेंस ही शो करेगा। But for incomplete dominance, the two alleles in the hybrid combination produce more or the less intermediate expression when the original form between the original form of character। लेकिन जब हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात करते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात करते हैं, तो एक सिंगल डोज में और एक डबल डोज में काफी सारा डिफरेंस है। लाइक अगर हम यूं बात करते हैं, सॉरी, ये देखिए अगर ये येलो है, फर्ज करें ये येलो है और ये ग्रीन है, तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में ये लेट्स सपोज व्हाइट है। सो व्हाइट और ग्रीन का क्रॉस करवाएंगे तो हमारे पास ऑफस्प्रिंग येलो आएगा। लेट्स सपोज येलो एग्जांपल के तौर पे, क्योंकि यहाँ पे डबल डोज है, यहाँ पे सिंगल डोज है, और इस सिंगल डोज की वजह से और ये जो ट्रेट है, ये जो जीन है, ये इनकम्प्लीटनेस शो कर है, कंप्लीट डोमिनेंस नहीं है, वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, जिस वजह से कलर जो है वो ना फादर वाला आया है और ना ही मदर वाला आया है।
देखिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल दो जीन है, कैपिटल है जो कंट्रोल कर रहा है रेड कलर को, स्मॉल है कंट्रोल कर रहा है व्हाइट कलर को। ये कलर के फ्लावर्स हैं इन स्नैपड्रैगन्स में। अब क्या होता है, अब पेरेंट्स थे कैपिटल ए स्मॉल है, ये इनकी जीनोटाइप थी। इनकी फिनोटाइप्स क्या थी, ये रेड को शो कर रहा था, ये व्हाइट को शो कर रहा था। गैमीट्स बने, इधर से कैपिटल ए आया, इधर से स्मॉल ए आया। ऑफस्प्रिंग क्या था, पिंक कलर का आ गया। ये पिंक कैसे आ गया, क्योंकि ये जो था ये इनकम्प्लीट डोमिनेंट था। क्या था, इनकम्प्लीट, कंप्लीट नहीं था, या इंटरमीडिएट था या इनकम्प्लीट था। इसको कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जिसमें नया एक्सप्रेशन शो होता है। अब हुआ क्या कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमारे पास क्या हुआ कि 1 2 1 तीन तरह की फिनोटाइप्स आई, 3 डिफरेंट टाइप्स की फिनोटाइप आई। एक थी रेड, एक थी पिंक और एक थी वाइट। हालांकि जब हम डाइहाइब्रिड क्रॉस की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास 9 डिफरेंट फिनोटाइप्स आते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। हमारे पास 9 डिफरेंट क्लासेस आती हैं। सो नेक्स्ट वन क्या है, हमने डिस्कस करना है सिंपल मेंडल कैरेक्टर्स की इनहेरिटेंस को ह्यूमंस में और लीथल जीन्स को, कि ये क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेंडल ने क्या काम किया, मेंडल ने पी प्लांट पे काम किया, लेकिन उसका काम कभी भी पी प्लांट पे लिमिटेड नहीं था कि वो सिर्फ पी प्लांट के लिए ही सूटेबल है, ऐसी कोई बात नहीं थी। मेंडल का जो काम था वो ह्यूमंस के लिए भी सूटेबल था, वो एनिमल्स के लिए भी सूटेबल था, वो प्लांट्स के लिए भी सूटेबल था। लेकिन हमारे पास क्या था, हमारे पास ये डिफिकल्टीज थी कि हम हेरिडिटरी के प्रिंसिपल्स को अपनी एथिक्स वैल्यू के लिहाज से ह्यूमंस पे टेस्ट नहीं कर सकते थे। सो फार हमने क्या डिसाइड किया, मेंडल की रिसर्च को हमने ह्यूमंस में डिस्कस करने के लिए अपने जेनेटिकली डिजीज को देखा कि हमें क्या क्या डिजीज हो रही हैं। तो हमने उनमें से चंद एक कैरेक्टर्स को डिस्कस करना है जहां पे मेंडल की जेनेटिक्स को फॉलो करते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, इनहेरिटेंस ऑफ अल्बिनिज्म, अल्बाइनो चाइल्ड। हैव यू लिसन अबाउट अल्बाइनो चाइल्ड? जी सर। अल्बाइनो चाइल्ड कौन से होते हैं? ये में कलर पिगमेंट नहीं होता, स्किन का कलर नहीं शो होता। स्किन का कलर नहीं शो होता, बिल्कुल राइट। तो अगर आप अल्बाइनो चाइल्ड को देखें तो ये उनकी फैमिली में प्रॉब्लम चल रही होती है। इट्स मीन कि अगर एक अल्बाइनो आपकी फैमिली में बॉर्न होता है तो लेट्स सपोज उसकी प्रोजनी ना हो, लेकिन उससे नेक्स्ट जो उसकी प्रोजनी आएगी उसमें एटलीस्ट एक ना एक बच्चा जरूर अल्बाइनो होगा, क्योंकि ये हेरिडिटरी डिजीज है और ये हेरिडिटरी के साथ चलती है। ये जेनेटिक डिसऑर्डर है जो आपके जेनेटिक्स के थ्रू, जो आपके क्रोमोसोम्स हैं, XY क्रोमोसोम्स हैं या XX क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम नंबर 46 इन केस ऑफ ह्यूमंस जो 23 पेयर है,
ये उसमें प्रेजेंट होता है और ये आपकी लाइफ के साथ चलते हैं अल्बाइनो चाइल्ड्स। अब देखिए अल्बाइनो इंडिविजुअल क्या होता है, जिसमें पिगमेंट नहीं होता, बॉडी का कलर नहीं आता। वो एक आप कह लें बिल्कुल लाइट सा कलर होता है, वाइट बिल्कुल। और काफी सारों के हेयर्स का भी प्रॉब्लम है, हेयर्स के भी वाइट होते हैं। So this is the simple Mendelian character in which non-albino is dominant over albino, either the homozygote or the heterozygote। अब होता क्या है कि जो नॉन अल्बाइनो है वो डोमिनेंट है अल्बाइनो के ऊपर, फिर बेशक वो जो नॉन अल्बाइनो है वो हेटेरोजाइगोट कंडीशन में हो या होमोजाइगोट कंडीशन में हो। वेरी क्लियर, होमोजाइगोट कंडीशन ऐसी कंडीशन जिसमें दोनों अलील्स जो है वो सेम होते हैं, या वो दोनों बड़े होते हैं या वो दोनों छोटे होते हैं। रादर देन हेटेरोजाइगोट कंडीशन एक ऐसी कंडीशन जिसमें एक अलील बड़ा होगा तो दूसरा अलील छोटा होगा। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात, जो रिसेसिव ट्रेट होता है, जो भी रिसेसिव ट्रेट होगा वो हमेशा ही होमोजाइगस फॉर्म में पाया जाएगा, वो कभी भी हेटेरोजाइगस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। रिसेसिवनेस को शो होने के लिए डबल डोज की जरूरत होती है। रिसेसिव ट्रेट को शो होने के लिए डबल डोज ऑफ एलील्स की जरूरत होती है। वो सिंगल डोज में अपना इफेक्ट शो नहीं करते, रादर देन कि अगर वो रिसेसिवनेस में भी डोमिनेंट हो। नो सॉरी, रादर देन के वो डबल डोज में ना पाए जाते हो। So then next one case is the inheritance of the taste blindness। taste blindness है का एक बेसिकली एक फिनाइल थायोकार्बोमाइड जे के इंटेंसिव बिटर टेस्ट का होता है, केमिकल है। तो अमेरिकन के जो 70% लोग हैं वो इसके टेस्ट को फील कर सकते हैं, लेकिन जो 30% लोग हैं वो नॉन टेस्टर हैं, वो उनको ये टेस्ट महसूस ही नहीं होता। तो ये भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है कि आपको टेस्ट ही महसूस नहीं होता। ज्यादा कड़वा टेस्ट आप टेस्ट कर ही नहीं सकते, वो आपके लिए कुछ भी नहीं है, बेशक वो जितना भी कड़वा, जैसा कि वो इन 30% अमेरिकन के लिए कुछ भी नहीं है, बेशक वो जितना भी कड़वा हो। So the tester people have the dominant gene of testing, double T or a double T small t, oh sorry, capital T and a capital T small t, while the non-tester have the small t gene। अब जो टेस्टर लोग हैं जिनको वो टेस्ट महसूस होता है वो डोमिनेंट है, और जो नॉन टेस्टर हैं वो रिसेसिव ट्रेट्स है। Then there is also the inheritance of eye color। आई कलर है डिफरेंट शेड्स, आई कलर के काफी सारे शेड्स होते हैं, ब्राउन है, ब्लैक है, ब्लू है, ब्लू में काफी शेड्स हैं, ग्रीनिश है। सो अब विमेंस में काफी सारे आई कलर के शेड पाए जाते हैं, लेकिन आई कलर की इनहेरिटेंस मोस्ट डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है? क्योंकि इसमें डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। आई कलर की कोई दो क्लासेस नहीं है स्पेसिफिक कि या तो आई कलर ब्लैक होगा या ब्लू होगा, दो क्लासेस नहीं है। देयर आर लार्जर डाइवर्सिटीज प्रेजेंट, ब्लू, ब्लैक, ब्राउन, ग्रीन, रेडिश, lots of eye colors or the eye shades are present. So far it is very difficult to study the eye color inheritance because this is not a qualitative trait. This eye color is a quantitative trait. Qualitative traits are usually are the two class traits. Either this is the red or either this is the white. Either this is the black or this is the brown. Either this is the tall and either this is the dwarf. While the quantitative traits are like the continuous traits. If we said that this is the 1 or this is the 2, this is the qualitative trait. But when we said that this is the 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 and 2, this is the continuous trait and this is known as the quantitative traits. So far the eye color is like the quantitative traits, like in humans the eye color, the human height are also the quantitative trait।
Then this is the phenotype or the phenocopy. As I already told you that the phenotype is the physical appearance of an individual. Like if there is the plant, a snapdragon plant, and the flower color is the white, you easily observe and you said that the phenotype of the flower color is the white, or the phenotype of the flower color is the yellow. Phenotype of the plant is green, or the plant is the yellow. The round seed in shape or the wrinkled seed shape. Phenotype is observed character of an individual without any reference to its genetic constitution. We have don't concern with its genetic constitution. Either this is the capital T or the capital T or the small t, but we only observe a phenotype which is the tall. Like this is the capital T, and this is the small t. This is the genetic makeup. Whether both have the genetic makeup are different, but the phenotype is the same, which is tall. But when we talk about the phenocopy, what is the phenocopy? What do you think? What is phenocopy? Is this a look-like phenotype or not? So the answer is phenocopy is basically the copy of the phenotype. But how it is different from the phenotype? Let me explain it together. Sometime by changing the environment, a phenotype change without hereditary change. The change apparently similar to change by the mutation in genes is known as the phenocopy. Sometimes क्या होता है कि आप let's suppose आपकी स्किन का कलर इंटायरली वाइट है, बिल्कुल वाइट कलर आपकी स्किन है। होता क्या है कि आपको कंटिन्यूअस धूप पे 16 घंटे काम करना पड़ता है। कितना? 16 घंटे काम करना पड़ता है और आपकी स्किन का कलर ब्लैक हो जाता है। इट्स मीन कि दो इंडिविजुअल्स थे, लाइक एक इंडिविजुअल 1 था और एक इंडिविजुअल 2 था। अब जो इंडिविजुअल 1 था वो व्हाइट कलर का था, जो इंडिविजुअल 2 था वो ब्लैक कलर का था। अब हुआ क्या, जो 1 था उसको भी हमने 24 घंटे काम करवाया, धूप पे काम करवाया, वो भी कलर में ब्लैक हो गया। तो 1 और 2 फिनोटिपिकली आपस में क्या हो गए? सेम हो गए। लेकिन आगे फर्दर जब 1 और 2 की आगे जब प्रोजनी आएगी, जो उनके ऑफ स्प्रिंग्स आएंगे, तो जो 1 होगा उसके ऑफ स्प्रिंग व्हाइट होंगे, जो 2 होगा उसके ऑफ स्प्रिंग ब्लैक होंगे। क्यों ब्लैक होंगे? वो फिनोटिपिकल तो सेम लग रहे थे, लेकिन क्या हुआ कि जो 2 था उसकी जेनेटिक्स में था कि उसकी स्किन का कलर ब्लैक है। हालांकि जो जो नंबर 1 वाला था उसकी जेनेटिक्स में ये प्रेजेंट नहीं था, उसकी जेनेटिक्स में था कि उसकी स्किन का कलर व्हाइट है, इसलिए उसके ऑफ स्प्रिंग्स आगे से व्हाइट होंगे। सो एक ऐसी फिनोटाइप बन जाना एनवायरनमेंट की वजह से जो रियल लगे लेकिन वो जेनेटिकली चेंज नहीं हो, उसको हम क्या कहते हैं? फिनोकॉपी कहते हैं। लेट मी एक्सप्लेन फर्दर बाय एग्जांपल। फ्रूट फ्लाई एक है, उसका नॉर्मल बॉडी कलर होता है लाइट ब्राउन होता है, लेकिन जब उसकी म्यूटेशन हो जाती है, उसके जीन्स चेंज होते हैं, तो उसकी बॉडी कलर येलो हो जाता है। इसी तरह अगर हम एक नॉर्मल फ्रूट फ्लाई का जो लाइट ब्राउन कलर की हो, उसके प्यूपा को, उसको यंग स्टेज पे हम सिल्वर नाइट्रेट साल्ट है उस पे फीड करवाते हैं, तो उसकी बॉडी का कलर भी चेंज हो जाता है येलो में। अब जो सिल्वर इंड्यूस येलो फ्लाई है वो जेनेटिकली सिमिलर टू नॉर्मल ब्राउन कलर फ्लाइज, बट फिनोटिपिकली दे आर द डिफरेंट। सो एक म्यूटेट कॉपी डेवलप हो गई, एक फिनो कॉपी बन गई। The next one is the lethal gene. Basically, all major and minor traits in living organism, these are controlled by some kind of genes.
Genes which control the major traits are known as the major genes. For example, our brain development is or our lungs development or the heart development. These are the major genes because the heart, the brain, the lungs are our major traits or the major characters. While the genes which control the less important traits are known as the minor genes like finger segment development, hair growth, skin color, teeth growth, etc. But when a major gene is missing, like a heart gene is missed, it adversely affects the vitality of individuals. If an individual miss the heart genes or the lungs gene, then he can't grow up after zygote formation. He can't develop into an individual. He died at the zygote stage. So, the genes which exert a drastic effect on the organism as to kill it are known as the lethal genes. Lethal genes are sometimes dominant and sometimes recessive. Sometimes individuals die at early embryonic stages and sometimes with delay. But lethal genes can't die 100% all individuals. If some individual carry the lethal gene like a dominant gene in the heterozygous form, like capital T has small t, while the capital T is the lethal gene, but this is the heterozygous in position, then this individual is the carrier of this lethal gene. When its offspring express the capital T trait, then this lead to lethal gene, and with this lethal gene, he might be unable to do some important work. But if we artificially change the gene status, overcome this problem, then this individual live life normally. For example, albino सीडलिंग ऑफ मेल्स की जो अल्बाइनो सीडलिंग होती हैं वो लीथल जीन्स की वजह से होती हैं. अगर हम उनको फीड करवाएं एक ऐसे सूटेबल मीडिया पे जिसकी वजह से वो नॉर्मल ग्रो करें और उनमें सीड सेट हो जाएगा. या ह्यूमंस की डिजीज की अगर बात करें तो ह्यूमंस की कुछ जेनेटिकल डिजीज हैं जिनको हम मेडिसिन से कंट्रोल कर रहे हैं तो वो इंसान नॉर्मली लाइफ गुजार सक रहे हैं, लाइक सिकल सेल एनीमिया. While there is another and most important example in case of lethal genes are अब बेसिकली होता क्या है कि पोल्ट्री में एक सी जीन होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है डेवलपमेंट ऑफ द शॉर्ट क्रोक्ड लेग्स. अब शॉर्ट क्रोक्ड लेग्स क्या है? एक लेग्स जो पोल्ट्री की लेग्स होती है, जैसे हमारा हाथ है तो हमारी उंगलियां बिल्कुल सीधी हैं, इसी तरह जो मुर्गी या मुर्गा होता है तो उसका जो पंजा होता है उसकी भी जो उंगलियां बनी होती हैं वो सीधी होती हैं. लेकिन सम टाइम क्या होता है कि अगर उसमें क्रैपर जीन, जो क्रैपर्स शॉर्ट लेग्स होती है, उनमें वो जो उसकी उंगलियां होती हैं वो टर्न हो जाती हैं, टेढ़ी होती हैं, जिसकी वजह से वो सही से चल नहीं सकता, वो कंपीट नहीं कर सकता एक नॉर्मल क्रेपर और एक नॉर्मल पोल्ट्री बर्ड से. अब क्या होता है, जो कैपिटल जीन है, कैपिटल सी जीन है, वो रिस्पॉन्सिबल है शॉर्ट क्रोक्ड लेग्स के लिए. होता क्या है, व्हेन टू क्रीपर्स आर इंटरक्रॉस्ड, 3 इंडिविजुअल्स पैदा होते हैं, 2 क्रीपर्स एंड 1 नॉर्मल इंस्टेड ऑफ द 3:1 रेशियोज. अब होना क्या चाहिए, जो हमने पीछे डिस्कस किया कि अगर एक मोनो हाइब्रिड जब हम बात करते हैं एक सिंगल कैरेक्टर की, तो जो उससे इंडिविजुअल पैदा होते हैं वो हमेशा 4 होते हैं नंबर में, उनमें 3:1 की रेशियो बनती है. लेकिन इस केस में क्या हुआ
कि 2 क्रीपर्स पैदा हुए, 1 नॉर्मल पैदा हुआ, 3 टोटल इंडिविजुअल पैदा हुए 4 की बजाय, तो एक जो था वो कहाँ गया? ये क्वेश्चन था, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। यहाँ पे हम देखते हैं उसके साथ हुआ क्या। जब 2 क्रीपर बर्ड्स को हमने क्रॉस कराया, कैपिटल सी स्मॉल सी को क्रॉस कराया कैपिटल सी स्मॉल सी से, तो हमें एक मिला कैपिटल सी वाला, 2 मिले कैपिटल सी स्मॉल सी और एक मिला स्मॉल सी वाला। स्मॉल सी नॉर्मल था, यानी रिसेसिव ट्रेट इसमें नॉर्मल है, लेकिन जो क्रीपर थे वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में थे। जब क्रीपर्स के जीन जो थे वो होमोजाइगस कंडीशन में आए, दोनों बड़े सी आए, तो वो परिंदा मर गया। तो हमने इस रिसर्च से ये पॉइंट 2 इंक्लूड किए कि जो क्रीपर्स बर्ड्स हैं वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में जो जीन्स है वो जब प्रेजेंट होगा तब क्रीपर्स बर्ड्स जो है वो पैदा होंगे। और जो क्लास हमारी मिस हुई कैपिटल सी वाली, वो मिस हुई डेथ की वजह से। इट्स मीन कि जब 2 डोमिनेंट क्रीपर्स जीन इकट्ठे एक इन बर्ड में प्रेजेंट हो जाएं तो वो बर्ड जो है वो डेड हो जाता है, उसका जो इफेक्ट होता है वो लीथल होता है। हालांकि वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में लीथल नहीं होता, लेकिन वो होमोजाइगस कंडीशन में लीथल परफॉर्म करता है क्रीपर्स का जो जीन है। While there is also the recessive lethal gene. अब recessive lethal gene show their effect only in the homozygous condition. Like in case of maize albino seed, the mutation in dominant gene change into a small a gene, which when come in homozygous condition produce the albino seed. Like here, two parents capital A small a cross with a capital A small a. Two gametes are produced. Female produce a capital A and small a. The male produce capital A and the small a. When this one cross with this normal and albino, it means three individuals are normal and one is the albino, which consists of the homozygous gene or recessive gene. And this albino is basically a lethal due to not production of the chlorophyll pigment is not produced in the albino seed, and the plants are unable to produce their food. So far the plant dead. Hence this is all for today. In our coming lecture on Monday, we discuss or we solve the numericals related to our previous lectures, and I also share the topics of some numericals and the statements of some numerical. All of you print these statements, and next time I will give you the assignment for solving the numericals. As many as we solve in our class, but remaining ones you have to solve yourself by yourself. Is there any question relating to today's lecture? Please ask. सब लीथल जीन एक बार दोबारा। लीथल जीन बेसिकली क्या होता है? एक ऐसा जीन जो उसके जो इफेक्ट हैं वो इतने ड्रास्टिक हों कि जो इंडिविजुअल है वो उससे डेथ हो जाए, या इंडिविजुअल जो है वो किसी स्पेसिफिक काम से महरूम हो जाए। अब देखिए लीथल जीन बेसिकली क्या होगा, म्यूटेशन की वजह से ही आएगा। अगर तो एक ऐसे जीन लीथल बन जाता है जो आपका हार्ट जो है वो जब जाइगोट में जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है एग और स्पर्म की, उसके बाद आपके जो इंडिविजुअल्स होते हैं, जो भी ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, उनमें ऑर्गन डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। अगर तो किसी ऐसे जीन में म्यूटेशन हो गई है, वो लीथल बन गया है कि उस ऐसे जीन में म्यूटेशन हो गई है कि वो हार्ट ही नहीं बना रहा इंडिविजुअल का, तो जाहिर सी बात है उससे वो जो इंडिविजुअल है उसकी डेथ हो जाएगी। क्योंकि हार्ट नहीं होगा तो जाहिर बात है इंडिविजुअल रिमेन
जिंदा नहीं रह सकेगा। इट्स मीन कि वो जो हार्ट वाला जीन होगा उसको उस केस में हम क्या कहेंगे, लीथल जीन कहेंगे। इट्स मीन कि ऐसे जीन जो अपना ड्रास्टिक इफेक्ट शो करें जिससे इंडिविजुअल की डेथ हो जाए या इंडिविजुअल किसी इंपॉर्टेंट काम से मिस हो जाए, तो उस जीन्स को हम लीथल जीन्स कहते हैं, जिसमें किसी इंडिविजुअल की डेथ हो जाए। अगर किसी को किसी चीज की समझ नहीं आई तो प्लीज पूछ लें, कोई बात नहीं, क्योंकि आज का लेक्चर थोड़ा सा था somehow डिफिकल्ट, लेकिन अंडरस्टैंड आपको आई थिंक हो गया होगा। सर क्रीपर बर्ड वाला दोबारा बता दें, एक मिनट। बेसिकली क्रीपर्स क्या होता है, क्रीपर्स एक करैक्टर है, ट्रेट है, लेट्स सपोज। क्रीपर होता है क्या है कि उससे जो पोल्ट्री होती है, जो उसमें जो मुर्गियां होती हैं, उनका बेसिकली जो पाँव होते हैं वो थोड़े टेढ़े हो जाते हैं। ठहरे मैं आपको पिक्चर्स दिखाता हूँ, वेट। सो होता क्या है कि वो जो बेसिकली ये क्रीपर्स जो है ये कंट्रोल हो रहे होते हैं एक कैपिटल सी जीन से। अब ये जो कैपिटल सी जीन्स है, अब इसमें हमने एक एग्जांपल दी, एक हमने एक्सप्लेन किया कि जो इंडिविजुअल जो लीथल जीन्स है वो डोमिनेंस में भी आ सकता है, वो होमोजाइगस कंडीशन में भी आ सकता है, और हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी आ सकता है, डोमिनेंस में भी हो सकता है और रिसेसिवनेस में भी हो सकता है। अब पोल्ट्री की एग्जांपल इसलिए दी गई कि क्रीपर्स में जो शार्ट क्रोक्ड लेग्स पैदा हो जाती हैं, वो शार्ट क्रोक्ड जो लेग्स होती हैं वो बेसिकली होती हैं कैपिटल सी जीन्स के थ्रू। अब कैपिटल सी जीन्स अगर एक अकेला जीन है वो अब डोमिनेट है, लेकिन वो होमोजाइगस कंडीशन में भी हो सकता है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी हो सकता है। लेकिन जब वो होमोजाइगस कंडीशन में एक जीन जो है वो एक ही बर्ड में प्रेजेंट हो जाए, यानी कैपिटल सी की दो डोजेस इकट्ठी एक ही इंडिविजुअल में आ जाएं, तो क्या होता है कि वो इंडिविजुअल जो है वो उसकी डेथ हो जाती है। हमने क्रीपर्स की एक एग्जांपल ली कि उससे क्या होगा कि जो इंडिविजुअल है वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में आएगा, एक कैपिटल सी होगा दूसरा स्मॉल सी होगा, तब जाके शार्ट वो लेग जो है वो प्रोड्यूस होगी। लेकिन अगर वो रिसेसिव फॉर्म में आ जाता है तो रिसेसिव फॉर्म में क्या होगा कि वो नॉर्मल इंडिविजुअल होगा, उसकी जो टांगे हैं वो राउंडेड नहीं होंगी। लाइक हियर usually observe this is the due to the disease creeper short crooked legs, in which this is entirely different from the normal one, like here this one, और ये किस वजह this से one। मतलब इनकी टांगें जो है वो मुड़ जाती हैं, टेढ़ी हो जाती हैं, पंजे जो हैं इनके? ये टेढ़े हो जाते, बेसिक रीजन इसकी क्या होती है कि जब जीन्स में म्यूटेशन हो जाती है, एक देखें स्मॉल सी एक नॉर्मल जीन्स चल रहा है, अब अचानक से क्या हुआ उसमें किसी तरह से म्यूटेशन आ गई, उसमें चेंजिंग आ गई, वो म्यूटेशन कोई केमिकली के थ्रू भी हमें इंट्रोड्यूस हो सकती है या कुछ रेज होती हैं एक्सरेज वगैरह उनके थ्रू हो गई, तो उससे क्या हुआ वो जो स्मॉल सी जीन था वो चेंज हो गया कैपिटल सी और स्मॉल, एक डोज में क्या हो गया कि म्यूटेशन हो गई। जब एक डोज में म्यूटेशन हुई तो वो जो स्मॉल सी वाले जीन थे वो बन गया कैपिटल सी स्मॉल सी।
अब वो जो कैपिटल सी स्मॉल सी था उसकी वजह से क्या हो गया, इनकी जो लेग्स थी वो टेढ़ी हो गई, जिसकी वजह से ये जो डिजीज हुई कैपिटल सी स्मॉल सी की वजह से हुई। अगर तो वो हम कैपिटल सी और स्मॉल सी वाले बर्ड्स का आगे फर्दर क्रॉस करवाते हैं, अगर हम उसका अगेन क्रॉस करवाते हैं एक ऐसे ही क्रीपर के साथ जो वो भी क्रीपर हो, उसकी टांगे भी टेढ़ी हो, तो उससे हमें क्या इंडिविजुअल मिलेंगे कि दो हमें फिर क्रीपर इंडिविजुअल मिलेंगे और एक हमें क्या मिलेगा, नॉर्मल मिलेगा। रेदर देन कि अगर हम उस कैपिटल सी स्मॉल सी वाले को एक नॉर्मल इंडिविजुअल से क्रॉस करवाते हैं जो नॉर्मल होगा, तो उससे हमें क्या फायदा होगा कि उससे हमें हाफ हाफ रेशो में दोनों मिलेंगे। हाफ बर्ड्स ऐसे आएंगे जिनकी टांगे टेढ़ी होंगी, हाफ बर्ड्स ऐसे आएंगे जिनकी टांगे नॉर्मल होंगी। क्या सर ये मतलब पैदाइशी भी हो सकता है ऐसा, या सिर्फ ये क्रॉस करवाने से या जीन्स के कम होने से देखिए ये पैदाइशी डिजीज जो है ये पाई जाती आप अब आपने जब क्रॉस करवाना है किसी इंडिविजुअल का, अगर तो वो इंडिविजुअल क्रीपर ही है तो जाहिर सी बात है उससे आगे जो इंडिविजुअल्स आएंगे, जो उसके ऑफस्प्रिंग्स आएंगे, वो भी क्रीपर्स ही होंगे। अगर आप एक क्रीपर का क्रॉस करवा रहे हैं तो उससे क्रीपर्स ही होंगे। लेकिन अगर आप किसी पूछ रहा हूँ नॉर्मल कि क्या इंडिविजुअल्स ये का करवा रहे हैं, अगर आप किसी नॉर्मल इंडिविजुअल को यूज कर रहे हैं तो उससे आगे नॉर्मल ही आएंगे, रेदर देन कि उसमें कोई म्यूटेशन ना हो। ठीक जी, बेहतर सही, ठीक है। बस क्वेश्चन खत्म हो गए, चले ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह